الله الرحمن الرحيم وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئت عليكم بكرامة الدنيا وشرف الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد الأمرين قال النبي صلى الله عليه وسلم وبعمر بن الخطاب خاصة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران، نبی کا دوست نہ دنیا میں کبھی آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے دوست ہیں میرے محبوب کے جو آج تک روزہ رسول میں سو رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ایمان کیسے لائے؟ جو کہتے تھے کہ خطاب کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے لیکن عمر کبھی ایمان نہیں لائے گا. تو اللہ نے ایسے دین کی شمع جلائی دل میں. بدھ کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حرم میں مار پڑے. اتنا مارا چہرہ ناک سب برابر ہو گیا، چہرہ سوکھ گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیہوش ہو گئے. بنو تیم نے آ کر اٹھایا اور اعلان کیا اگر ابوبکر کو کچھ ہو گیا تو بدلے میں ہم عتبہ کو قتل کر دیں گے. تو آپ کو حضرت زید بن ارقم کے گھر پر لے کر گئے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ پورا مخالف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا تو کیا کہا؟ ماذا فعل رسول اللہ، میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کی ماں غصہ ہو گئی کہ جس کی وجہ سے تم نے مار کھائی ہے پھر اسی کا نام لیتے ہو، مجھے پتہ نہیں تیرا نبی کا کیا حال ہے. تو قریش نے کہا کچھ کھا لو، فروٹ کھا لو، پانی پی لو. کہا نہیں، جب تک اللہ کے نبی کو نہیں دیکھوں گا کچھ نہیں کھاؤں گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مار ہونے لگی. کہا مجھے کیا پتا تیرا محبوب کہاں ہے. تو حضرت ام جمیل کو بلایا. حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول زید بن ارقم کے گھر پر ہے. کہا مجھے لے جاؤ. اور چلنے کا ایسا عالم، بیماری ایسی سخت کہ ایک ہاتھ اپنی ماں کے کندھے پر رکھا اور ایک ہاتھ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر رکھا. پاؤں سے گھسٹتے گھسٹتے اللہ کے محبوب کے پاس گئے. جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو زارا پتا رونا شروع ہو گیا. اللہ کے رسول بھی رونا شروع ہو گئے اور اللہ کے رسول کو گلے سے لگایا. کافی دیر تک روتے رہے. کہا اللہ کے رسول میری ماں ابھی تک ایمان نہیں لائی، اس کے ایمان کی دعا فرما دیں. تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے. حضرت ابوبکر صدیق کی ماں کا سینہ ایمان سے روشن ہو گیا. فوراً پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر اللہ کے رسول نے یہاں پہ بس ہو کر فرمایا اے اللہ تجھ سے میں 2 عمر مانگتا ہوں اسلام کی بلندی کے لیے. ایک عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عمر ابن ہشام ہے جو ابو جہل کہلاتا ہے. اے اللہ مجھ سے پوچھے اے میرے محبوب آپ کو کون سا عمر چاہیے تو میں کہوں گا باب عمر ابن خطاب خاصتاً میرا خطاب حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول نے یہ دعا کی بدھ کے دن اور جمعرات کی صبح ہوئی. کفار میٹنگ کر رہے ہیں کہ محمد کا یہ تبلیغ کا کام صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑھ گیا ہے، اسے روکنے کے لیے کوئی ترغیب سوچی جائے. تو مختلف رائے آئی. حضرت عمر کی رائے آ رہی ہے اسی کی گردن اڑا دی جائے، نعوذ باللہ. تو
तो सब ने कहा तू बेशक खत्ताब का बेटा है, तू ही इसे कत्ल करेगा। कहा हाँ मैं कत्ल करूंगा। तलवार उठाई, गुस्से के आसार चेहरे पर, और घर से बाहर निकले। एक सहाबी मिले, रास्ते में, उमर कहाँ जा रहे हो? कहा आज मोहम्मद को कत्ल कर दूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहा पहले घर में की खबर तो ले, तेरी बहन और तेरा बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। तो गुस्सा उधर मुंतकिल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं गए, अपनी बहन के घर में गए। हजरत उम्मे जमील रजी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हुई हैं और हजरत खुबाब रजी अल्लाह ताला अन्हा कुरान पढ़ा रहे हैं। जब आवाज सुनी तो हजरत खुबाब रजी अल्लाह ताला अन्हा छुप गए कि उमर आ गया है। तो दरवाजे को लात मारी, अपने बहनोई को, सईद बिन ज़ैद को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, कपड़े सारे खून से रंगीन हो गए। और बहन को थप्पड़ मारा। हजरत उम्मे जमील वहां जा गिरी। कहा तू बेदीन हो गई है, बाप दादे का दीन छोड़कर तूने मोहम्मद के दीन को माना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहन गुस्से में कहा उमर, ईमान का ऐसा जज्बा, कहा उमर मेरी जान लेना चाहते हो ले लो, मैं भी तुम्हारी बहन हूं, मैं अब हक नहीं छोड़ूंगी। मैं अब हक, सामने कुरान पढ़ा हुआ था। तो कहा ये क्या है? कहा तू नापाक है, वजू कर। तो वजू किया, आयत पढ़ी और रज़ा तारी हुआ। कहा मुझे मोहम्मद के पास ले चलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ज़ैद बिन अरकम के घर पर हैं। जब हजरत उमर गए, तलवार ले गए। हजरत हमजा ईमान ला चुके थे उस वक्त। तो हजरत हमजा ने देखा, सहाबा ने देखा, कहा उमर आ रहा है और तलवार हाथ में है, चेहरे पर गुस्से के आसार हैं। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया उमर को आने दो, नीयत ठीक है तो उसका नसीब है, और नीयत अच्छी नहीं, उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ाऊंगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, अल्लाह के रसूल के बद्दुआ के मुखड़े को देखा। अल्लाह के रसूल बेबस होकर अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर अभी ये वक्त नहीं आया तू कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा अल्लाह के रसूल वक्त आ गया है। तलवार फेंकी, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। खुशी की लहर दौड़ी, फौरन हजरत जिब्रील अमीन है, अल्लाह के रसूल उमर के इस्लाम लाने पर आपको खुशी हो रही है? कहा हाँ जिब्राइल हो रही है। कहा सातों आसमानों के फरिश्ते भी खुशियां मना रहे हैं। आज उमर मुसलमान हो गया है। ऐ अल्लाह के रसूल, इबादत बैतुल्लाह में होगी। उमर कुफ्फार इबादत नहीं करने देंगे, कुफ्फार तो दीन के मुखालिफ हैं, अभी इस्लाम गालिब नहीं हुआ, बैतुल्लाह में इबादत कैसे करें? कहा अल्लाह के रसूल मैं मुसलमान हो चुका हूँ। तलवार लहराई मक्के में। कहा जिन्होंने अपने बच्चे यतीम करवाने हैं आए हमें रोक ले। आज उमर इबादत बैतुल्लाह में करवाएगा। सहाबा ने तकबीर कही, उस वक्त बैतुल्लाह में अल्लाह के रसूल ने इबादत फरमाई। ऐसा खलीफा रातों को मस्जिद में झाड़ू दे रहे हैं और रातों को रो रहे हैं। क्यों रो रहे हो अमीरुल मोमिनीन? का दजला के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया, मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह को? मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह को? एक घर से गुजरते हैं, रोने की आवाज आती है चंद बच्चों की, तो पूछते हैं बहन बच्चों को क्या हुआ? क्या आज कितने दिन हो गए इस बच्चों ने कुछ नहीं खाया, मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया। क्या उमर का और मेरा अल्लाह के यहाँ मामला होगा? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बहन उमर को तेरे हाल का क्या पता? क्या फिर हमारा खलीफा क्यों बना है? फिर खिलाफत क्यों नहीं छोड़ देता? बैतुल माल में है और अनाज उठाया, लेकर कंधे पर उठाया बोरी। हजरत असलम रजी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन खलीफा हैं हजरत उमर के। कहा अमीरुल मोमिनीन ये बोरी मुझे दे दे, मैं उठाऊंगा। कहा असलम क़यामत के दिन मेरा बोझ उठाएगा? कहा नहीं, क़यामत के दिन मैं आपका बोझ नहीं उठाऊंगा। कहा फिर मैं खलीफा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, ये मुझे उठाने दो। लेकर गए और हजरत असलम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हजरत उमर ने देगची उठाई और सूजी डाली, घी डाला, नीचे आग जलाई, हलवा बना रहे हैं और जो धुआं निकल रहा है मुंह से फूंके मार रहे हैं। हजरत असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वो चूल्हे का धुआं मैंने हजरत उमर के मुंह से निकलता हुआ देखा, दाढ़ी से निकलता हुआ देखा। रो भी रहे हैं और खाना भी तैयार कर रहे हैं, बच्चों को खिलाया, बच्चे हंसने लगे और हजरत उमर रोने लगे। कहा असलम जैसे मैंने इन्हें रुलाया है, जब तक हंसता हुआ नहीं देखूंगा यहाँ से मैं नहीं जाऊंगा। हाँ सहाबा अल्लाह के रास्ते में हैं और गुंडी खटका के पूछ रहे हैं बहन तेरे घर वाला तो अल्लाह के रास्ते में है, ऐ बहन तेरा भाई तो अल्लाह के रास्ते में है, ऐ बहन
तेरा बेटा तो अल्लाह के रास्ते में है, जो क्या सब्जी लेकर आऊं, सौदा लेकर आऊं, मुझे हुक्म दे, क्या मंगाना है, घी मंगाना है, जो मंगाना है, पानी भर कर देना है। ए अम्मा, तेरे घर में तो पानी नहीं है, मुझे दे डोल, मैं पानी भर कर लाता हूँ। तू ऐसे हालात हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी की। ऐसा हुक्मरान न दुनिया में कभी आया है, न क़यामत तक आएगा। हाँ, ऐसा बैतुल मुक़द्दिस को फतह करने जा रहे हैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत असलम साथ हैं और सवारी की लगाम हजरत असलम के, कभी हजरत असलम की बारी आती है, सवारी पर बैठते हैं, कभी हजरत उमर की बारी आती है, सवारी पर बैठते हैं। जब बैतुल मुक़द्दिस करीब आ गया तो हजरत असलम की बारी थी। कहा असलम सवारी पर बैठो। कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, कुफार देखकर हंसेंगे आपको कि गुलाम सवारी पर बैठा हुआ है और जो खलीफा है 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, वो लगाम पकड़ कर चल रहा है। कहा असलम, हमने सारी बड़े की रिवायतें तोड़ दी हैं, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, कोई बड़ा छोटा नहीं, न तुम बड़े हो न मैं बड़ा हूँ। अल्लाह के रसूल सबको बराबर कर कर गए हैं, अरब अजम को, काले गोरे को अल्लाह के रसूल ने आखिरी खुतबे में सबको बराबर किया है। ऐ असलम, हमारा दीन ये नहीं सिखाता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला लगाम लेकर आ रहे हैं और हजरत असलम सवारी पर बैठे हैं। कुफार ने देखा और किताब खोली, कहा ये लो बैतुल मुक़द्दिस की चाबियां, ये किताब में जो निशानी है वाकई यही अमीरुल मोमिनीन है जो लगाम पकड़ कर आ रहा है, जो लगाम पकड़। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, या हजरत सारिया जमात लेकर गए हुए थे और इतना दूर जैसे ये पाकिस्तान और ये मदीना है। हजरत उमर यहाँ से कह रहे हैं तो खुतबा बंद हुआ। सहाबा ने अर्ज की, अल्लाह के खलीफा आपने 3 बार ये अल्फाज क्यों फरमाए? क्या मैं देख रहा था हजरत सारिया जंग कर रहे थे, उनको शिकस्त हो रही थी, अल्लाह ने मुझे दिखाया, मैंने सारिया को कहा सारिया ये पहाड़ को पुस्त में करो, अल्लाह फतह हासिल कर देगा। कहा जैसे हजरत सारिया ने मेरी आवाज सुनी, अल्लाह ने पहुंचाई और पहाड़ को पुस्त में किया, अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता किया। ये खलीफा, ये मुसलमान पहले ऐसा होता था, हवा भी इसके ताबे, पानी भी इसके ताबे, मखलूक भी इसके ताबे, दुनिया भी इसके ताबे होती थी, आखिरत भी इसके ताबे होती थी। अल्लाह वही अल्लाह है, दुनिया वही अल्लाह, वही दुनिया है, लेकिन क्या मुसलमान बदल गया है, मुसलमान बदल गया है। हाँ, रातों को उठ उठ कर रो रहे हैं, ऐ अल्लाह दजला के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया, मुझसे मैं कैसे जवाब दूंगा तुझे, मैं कैसे जवाब दूंगा? जब कैसर और किसरा के खजाने आए, इतने खजाने आए थे, यहाँ ढेर लगे पड़े थे सोने चांदी के, उधर तरफ से आदमी खड़ा होता यहाँ से दूसरे को नहीं देख पाता था, इतने खजाने आए थे। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी के जमाने में कोई शहर पता नहीं हुआ था, कोई मुल्क पता नहीं हुआ था, अब कैसर और किसरा के खजाने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब माले गनीमत है। हजरत उमर की वही तरतीब है, फटा हुआ लिबास पहनते हैं, टाट लगे कपड़े पहनते हैं। हजरत उमर से कहते हैं अपनी तरतीब बदल दे, अच्छा खाना खाया करें, बड़े बड़े सरदार मिलने आते हैं, अच्छे कपड़े पहना करें। तो कहा कैसे बात करें? तो हजरत अली ने कहा नहीं मानेंगे, कहा हम बात करते हैं। तो हजरत उम्मे जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये दोनों आई। कहा अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के नबी के जमाने में कोई मुल्क पता नहीं हुआ था, अभी मुल्क पता हो गए हैं। आपकी वही तरतीब है, एक दिन खाते हैं, एक दिन नहीं खाते और फटे पुराने पेवंद लगे कपड़े पहनते हैं, अपनी तरतीब बदल दे। कहा मुझे पता चले जिन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है, मैं मार मार जिनके चेहरे गाड़ दूं। अल्लाह के नबी की सुन्नत से मुझे रोकने आई हो। तो हजरत हफ्सा से कहा हफ्सा तू मेरी बेटी है, मैं अम्मा जान आयशा से बात नहीं करता, ये बता के मेरे नबी का लिबास क्या था, मेरे नबी का लिबास क्या था? कहा अल्लाह के रसूल टाट लगा लिबास था, टाट लगा लिबास था, पेवंद लगे कपड़े थे। और अल्लाह के नबी का घर में बिस्तर क्या हुआ था? क्या टाट का बिस्तर होता था अल्लाह के नबी का। एक दिन मैंने उस टाट के बिस्तर को दो ताए लगाकर बिछा दिया, अल्लाह के रसूल सोए तो तहज्जुद में उठने से देर हो गई। कहा हफ्सा मेरा बिस्तर बदल दिया है? कहा नहीं अल्लाह के रसूल,
दो तय लगा दी हैं। कहा हफ्सा मेरा बिस्तर वही बना दे, वही बिस्तर मुझे पसंद है, मैं रातों को उठ कर अल्लाह से बातें किया करता हूँ और उम्मत के लिए मग़फ़िरत मांगा करता हूँ। इसकी नरमात में मुझे उठने से रोक दिया है। कहा मेरे महबूब का खाना क्या था? कहा एक दिन खाते थे, कभी 3-3 दिन भी पत्थर बांध कर भूखे होते, कभी 3-3 दिन भी पेट पर पत्थर बांध कर भूखे रहते थे। कहा ऐशा, कहा हफ्सा मेरी बात गौर से सुनो। 3 दोस्त थे, एक अल्लाह की राह पर चला, चलते 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 जन्नत तक पहुंच गया, कुल अंबिया के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दूसरा चला, उन्हीं के नक्शे कदम पर चला, चलते चलते जन्नत तक पहुंच गया और अपने पहले साथी से मिल गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला को। अब ये तीसरा चल रहा है, अगर उन्हीं के रास्ते पर चलेगा तो अपने दोस्तों तक पहुंचेगा, इधर उधर हुआ फूल भटक जाएगा। जाकर कह दो पूरे मदीना वालों से मैं उन्हीं के रास्ते पर चलता रहूंगा यहां तक कि मेरा अल्लाह मुझे उनसे मिला देगा। आखिरी हज है अमीर और मोमिनीन का, हज करने आए हुए हैं और बैतुल्लाह की चादर को पकड़ कर कह रहे हैं ऐ अल्लाह अब उम्र बूढ़ा हो चुका है, अब मुझसे अल्लाह अब मुझसे नहीं संभाली जाती पूरी हुक्मरानी, ऐ अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले। अल्लाह और बात कहूँ, मुझे रोज़ा रसूल में दफन होने की इजाजत है। अल्लाह मेरे नसीब में लिख दे, मैं रोज़ा रसूल में दफन होना चाहता हूँ। पहले वक्त में यही बैतुल्लाह है और अल्लाह के रसूल अल्लाह से मांग रहे हैं हजरत उमर से, और यही बैतुल्लाह है हजरत उमर के जमाने में। हजरत उमर इसी बैतुल्लाह से खड़े होकर अल्लाह पाक से मदीना मांग रहे हैं, अल्लाह पाक से मदीना मांग रहे हैं। हाँ, मौलाना शेख मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह से मदीने में मौत मांगा करो, अल्लाह से मदीने में मौत मांगा करो। तो क्यों? क्योंकि सारे मुल्क तलवार से फतह हुए, हत्ता कि मक्का भी तलवार से फतह हुआ, मदीना वो है जो अल्लाह के महबूब से प्यार से फतह। हमारे शाह साहब तबलीगी मरकज़ के अमीर हैं, वो फरमाते हैं मैं हज पर गया तो एक आदमी मुझे मिला, रोज़ा रसूल के पास बैठा था, कहा 12 साल से बैठा हूँ इसी आस में कि अल्लाह मदीने की मौत दे, अल्लाह मदीने की मौत दे दे। नमाज में खंजर लगा अमीर और मोमिनीन को, अबू लुलु मजूसी छुपा हुआ था, उसने कई बार किए, 7 बार किए खंजर के, और जहाँ से खंजर लगा और जहाँ तक खंजर लगा ये सारी आंखें निकल कर बाहर आ गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने आंखों को अंदर दबाया, नमाज पढ़ाई, और जख्म है अमीर और मोमिनीन का, रातों को उठ कर उठ नहीं सकते, जो ग़िज़ा खिलाते हैं यहाँ से निकल जाती है, ग़िज़ा असर नहीं करती। तो हजरत अली बीमार कुर्सी के लिए है, हजरत हसन भी साथ है, तो अमीर और मोमिनीन ज़ारो कतार रो रहे। कहा उमर क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, तुम तो हुक्मरान हो, तुम तो दिलेर हो। कहा उमर, कहा अली इसलिए रो रहा हूँ मौत के बाद मेरा क्या बनेगा, क्या पता कितने दिन जिंदगी है, इस जख्म में मेरा रहना, मुझे लगता है मौत के आसार करीब हैं, मैं नहीं रह सकता। ऐ अली मैं यही सोच रहा हूँ मौत के बाद मेरा हशर कब्र में कैसा हो। कौन से खलीफा अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर जन्नती है, उमर जन्नती है, हाकज़ा नुबअसु यौमल क़यामा, क़यामत के दिन मैं उठूंगा, एक तरफ से हजरत अबू बकर सिद्दीक होंगे, एक तरफ से हजरत उमर होंगे, मैं ऐसे उनका हाथ पकड़ कर उठूंगा। तो एक रिवायत में आता है हजरत बिलाल हबशी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हजरत बिलाल हबशी मेरे कदमों से उठाए जाएंगे और उठते ही हजरत बिलाल अज़ान देंगे। अल्लाह के रसूल ने, और जन्नत के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं मेराज पर गया, मैंने महल देखा सोने चांदी याकूत का, मैंने कहा जिब्राइल किसका महल है? फरमाया अल्लाह के रसूल ये आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का महल है। वो हजरत उमर कह रहे हैं मौत के बाद क्या होगा। हजरत अब्दुल्ला की मौत में सर है, हजरत अब्दुल्ला हजरत उमर को देख रहे हैं उनके बेटे, कहा अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पर रख। तो बेटा था यहाँ घुटने पर रखा, कहा मैं नहीं कह रहा मेरा सर जमीन पर रख दे, जमीन पर सर को रखा और सर को यूं करवट बदली और मट्टी में नाक को खिसकते और ज़ारों कतार होते। कहा अल्लाह अल्लाह मौत के बाद मेरा क्या होगा, मौत के बाद मेरा क्या होगा।
موت ایسی چیز ہے ہر یاد بھلا دینے والی ہے. موت ایسی چیز ہے بوڑھے باپ سے جوان بچے کو جدا کر دینے والی ہے. جوان بیٹے سے بوڑھے باپ کو جدا کر دینے والی ہے. ملے تمہیں اہل شان کیسے کیسے, مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل سفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تیری دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. ارے جیا کرتا ہے کیا یوں مرنے والا, جس کو پتا ہو میں نے اللہ کے پاس جانا ہے, جس کو پتا ہو حساب و کتاب کا وقت آنا ہے, وہ ایسے زندگی نہیں گزارا کرتا, جیا کرتا ہے کیا یوں مرنے والا. تجھے حسن و ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرمایا, کیا بیٹا اب میں موت کے قریب ہوں, جاؤ حضرت اماں عائشہ سے اجازت لو, میں روضہ رسول میں دفن ہونے کو. حضرت کہا ابھی امیر المومنین نہ کہنا, ابھی میں خلیفہ نہیں ہوں, اب کہنا میرا باپ عمر کہہ رہا ہے کہ آپ کی اجازت ہو میں روضہ رسول میں دفن ہو جاؤں. تو حضرت عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی, کہا اماں جان میرا باپ موت کے قریب ہے اور اس کی خواہش ہے میں روضہ رسول میں دفن ہونا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ رونے لگی, کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے چھوڑی تھی کہ اپنے باپ کے دائیں بائیں میں بھی دفن ہو جاؤں. اگر عمر کی یہ خواہش ہے, عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے, کہا ہم عمر کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہاں امیر المومنین کی روح نکلی, جنازہ اٹھایا گیا. ہاں عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. ہاں بچڑا کچھ اس طرح سے کہ رت ہی بدل گئے, اور ایک شخص سارے شہر کو ویران چھوڑ. دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. حضرت عائشہ روتے ہوئے حجرے سے باہر نکلی, امیر المومنین کو دفن کیا گیا اور قبر بند کی گئی. آج بھی وہ روضہ رسول 3 دوستوں سے بیٹھ رہا ہے. آج بھی وہ روضہ رسول 3 دوستوں, یہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا تھا, یہ لوگ تھے جنہوں نے جنت کے وعدے لیے تھے, یہ 2 لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکموں کو جانا تھا اور اللہ کے حکموں کو ماننا تھا. حضرت عتبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ بارے ہو کے نو آگے سمندر بے اختیار گھوڑا سمندر میں ڈال دیا. جب موجوں نے گھوڑے کو آگے بڑھنے سے روکا, تلوار نکالی آسمان کی طرف بلند کی, کہا اللہ مجھے پتا ہوتا اس بار بھی تیری کوئی مخلوق ہے, اللہ میں وہاں تیرے دین کو پہنچا دیا تھا. کھجور کے پتے بھگو کر کھائے, کھجور کی گٹھلیاں چوس کر کے گزارا کیا. میرے بھائیوں دین کو پہنچایا ہے, دین کو پہنچایا ہے. یہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے ذمہ ہے نیکی کی دعوت دے, برائی سے روکے, کیونکہ یہ ہمارا کام ہے, ہمارا ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. ختم نبوت کی ذمہ داری اس امت کے ذمہ ہے, تو سب کرو گے نا انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کی توفیق دے, سنت ادا کرو.